नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय मोहन। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहां पर 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एडवांस मटेरियल फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का आयोजन किया गया है। 4 मई से 6 मई 2023 तक नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस मटेरियल फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का आयोजन फिजिक्स डिपार्टमेंट द्वारा किया गया। Proceedings of the conference, there will be 24 technical sessions having 3 plenary, 27 invited, 102 oral and 111 poster presentations. The presented papers will be reviewed and will be sent for the publication in SCI Journal, that is Indian Journal of Engineering and Material Science, in December 2023 issue. May God bless us all to make this event an extraordinary, enlightening, enjoyable experience. Once again, I thank one and all. Thank you so much. What is the exact value which we are measuring? What is our capability as a national capability for this particular measurement? So this takes 3 to 5 years, and at the end of it, we know what is our capability. So we call it CMC. A pause to think that we have to recalibrate the development in the sense of its sustainability. Reason being that the galloping consumption, overuse of many of the things which has stressed our planet, and the problems of energy, the health, coming days will be challenged with the drinking water. So these are some of the things which are because of. इसमें भारत और विदेशों से भी कई साइंटिस्ट एवं प्रोफेसर्स ने ऑनलाइन हिस्सा लिया और पीएचडी स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिससे छात्रों को काफ़ी गाइडेंस मिली, जिसमें कई टेक्निकल्स कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई। This is Anup Kumar. I am here with my colleague Mr. Abhishek and Mr. Sushil to attend conference at NSUT, which is International Conference on Advanced Material for Emerging Technology. For this conference, and we feel this is one of the best platform where we can display our product range. We can meet our customer, existing as well as forthcoming customer. So I am Dev Prakash from Silicom Electronics. So हम लोग यहाँ ICMET में last 2 days से है, and there is a lots of exposure. कई सारे प्रोफेसर्स renowned यूनिवर्सिटीज़ से है, एंड हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है DC to नैनोवोल्ट्स टू गीगाहर्ट्ज़ की रेंज के हैं। इसमें ऑसिलोस्कोप, फंक्शनल पावर सप्लाईज एंड मटेरियल टेस्टिंग्स के लिए सेमीकंडक्टर पैरामीट्रिक एनालाइजर है, सोर्स मेजर यूनिट्स है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, एंड वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ एक्सपोजर हियर, एंड पीपल आर लाइकिंग आवर इंस्ट्रूमेंट्स प्रोडक्ट्स। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 230 से भी अधिक छात्र व छात्राओं एवं प्रोफेसर ने अलग अलग यूनिवर्सिटी से हिस्सा लिया। मेरा नाम एनी है और मैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग PhD फ्रॉम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड मैं इधर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने आई हूँ, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, एंड काफ़ी जगहों से काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मेरा नाम करण ग्रोवर है, मैं NSUT में रिसर्च स्कॉलर हूँ। ये NSUT की फ़र्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ICMET 2023। इसके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारा काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज़ हमें काफ़ी रिसर्च स्कॉलर से इंटरेक्शन करने को मिला जो कि पूरे इंडिया से आए थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर काफ़ी फैकल्टी से जो बाहर से प्रोफेसर्स आए हैं, इवन कि साइंटिस्ट, सबसे हमारा लाइव इंटरेक्शन हुआ, तो ओवरऑल बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हमारा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। I am Smriti Sihag. I have come from Haryana Agricultural University Hisar for attending the conference at NSUT. This is a very nice conference in which I am getting opportunity to interact to lot of scientists and other people working in my field. So I am finding this very useful opportunity. Today I have got this golden opportunity to present my research work at ICOMET conference at NSUT. I got a golden opportunity to interact with various professors and delegates present over here and present my work on a machine learning based prediction model for material property prediction and industrial usage classification.
I, along with my friends, actually worked on this project for almost 6 to 7 months, and finally we are here proudly presenting our project for the ICOMET conference. We have organized this seminar on advanced materials in NSUT. So NSUT में जो ये एडवांस मटेरियल और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार हाइब्रिड मोड में बिल्डअप किया गया है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इट इज़ वेरी मच beneficial for the researcher and upcoming scholars in the field of material science, energy harvesting and the energy conversion technologies which we are having in upcoming futures. How the class would be scheduled more than that इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए प्रोफेसरों का भी मानना है कि भविष्य में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती रहनी चाहिए, जिससे छात्रों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। So myself is Professor Rajesh Kumar. I am working as a physics professor in Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. So मैं आज यहाँ टॉक देने के लिए आया, इन्वाइटेड टॉक मेरी रखी थी। 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इट्स रिलेटेड टू द मटेरियल साइंस। सो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द audience and organizers to conducted. It's a good international conference, and I have delivered the invited talk on the ion beam modification of the materials, and there are some applications. So we are working in field of the material science. मैं प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा NSUT द्वारिका न्यू दिल्ली में एमरिटस प्रोफेसर हूँ। यहाँ पर हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांस्ड मटेरियल्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जिसका बहुत ही अच्छा उपयोग शोध छात्रों ने और टेक्नोलॉजी के अध्यापक गणों ने किया है, और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक और प्रोफेसरों ने अपने क्षेत्र के विषयों पर व्याख्यान दिए हैं, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने द्वारा किए गए कार्य को हमारे युवा शोध छात्रों के साथ शेयर किया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर डॉक्टर अनुराग गौर और प्रोफेसर रंजना झा जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमने ये 3 दिवसीय एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स NSUT दिल्ली में किया है, और इस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है सो देश विदेश से हमारे लगभग 200 से ज़्यादा प्रतिभागी, कुल 300 पेपर इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें प्राप्त हुए थे। फिर हमने उनके मेरिट के आधार पर 230 पेपर्स को सेलेक्ट किया जो इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होंगे। ऑरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, इनवाइटेड टॉक्स, कुल मिलाकर इन 3 दिवस के अंतर्गत, इस संगोष्ठी के अंतर्गत लगभग 25 सेशन पैरेलली होंगे, जिनके अंदर विभिन्न देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर्स अपने व्याख्यान देंगे, अपने रिसर्च कार्य शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। और उसी के साथ साथ इसमें अमेरिका से जो हमारे स्पीकर्स हैं वो देश के ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी हैं, अमेरिका से हैं, उसके साथ साथ टर्की से, फ्रांस से और विभिन्न देशों से, और सभी हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, NPL है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, JNU से SSPL, DRDO, NIT कुरुक्षेत्र, IITs और सभी संस्थानों से इसमें प्रतिभागी रहे हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां इन 3 दिनों के अंदर इस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं। इनमें इनवाइटेड टॉक्स हैं प्रोफेसर्स के द्वारा, इसी के साथ साथ ऑरल प्रेजेंटेशंस, पोस्टर प्रेजेंटेशंस, साथ साथ स्पॉन्सर्स की स्टॉल्स लगाई गई हैं, और इन स्टॉल्स पर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं इनमें एमटेक गैटन है, लैब इंडिया है, एंटोन पार है, एग मेटल्स है, ट्रिनिटी है। तो इन सभी ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, ताकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने क्या उनको आगे रिसर्च में करना है, किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, उस सब पे विचार मंथन इस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। This conference we have organized in a very short time, and we have received a overwhelming response from all over the globe. We have got approximately 300 abstracts, and after peer review we have selected 213 abstracts. We are having more than 30 number of the invited talks and 3 number of the plenary talks in this particular international conference.
इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन NSUT के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP सैनी जी और मुख्य अतिथि आई एलाइज वेज, सेक्रेटरी टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन दिल्ली ने सभी PhD स्कॉलर और प्रोफेसर्स को सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिए और वाइस चांसलर JP सैनी जी ने भी छात्रों का हौसला बढ़ाया और एलाइज वेज जी ने भी ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन को छात्रों के हित के लिए काफ़ी लाभदायक बताया। I came to know that conference has been organized very successfully in all aspects that include plenary and invited talk by eminent scientists from India and abroad, oral and poster presentations by research scholars from different universities and institutions. We know in 21st century is witnessing the contemporary technologies with nanotechnology, nanoelectronics, nanosensors, smart materials, biotechnology, bioinformatics, bionanotechnology, information technology, optical fiber technology, laser technology, remote sensing, space technology, environment and gravitation wave, etc. Once again, I would like to congratulate Professor Ranjana Jha and whole team for their untiring effort to complete proceedings of the conference successfully. As a part of G20 activities, the university is organizing various kinds of conferences and workshops towards empowering the research communities and our Indian economy. I wish all the very best for NSUT and its team for achieving excellence in research field and improve the international standing of our nation. With this note, once again, I thank all of you. Thank you. 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह के दौरान अंत में डॉक्टर अनुराग गौर ने इस कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन पर मीडिया सहित सभी का धन्यवाद किया। I would also like to thanks to Mrs. Seema Goyal, Deputy Registrar Account, for her help in finance-related work, all the technical staff of this APJ complex, Mr. Sanjay Mohan for the media coverage, Mr. Mukesh Garg for beautification and horticulture work, all the cleaning staff and all those who have supported us in all the ways to make this event successful. संजय मोहन, इंडियन न्यूज़, द्वारका, दिल्ली।